So, good morning students. Today we are going to discuss the determination of order of reaction experimentally. Experimental determination of order of reaction. तो experimentally हम कैसे determine कर सकते हैं order of reaction? तो जो first method है हमारे पास that is graphical method. With the help of graphical method we can find out the order of a reaction. So graphical method में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? What we have to do in graphical method? First of all, we will plot a graph between concentration versus time. Concentration जो है reactant की वो measure की जा सकती है. अगर हम concentration जो है वो measure कर लेते हैं reactants की with time, particular time पे reactants की क्या क्या concentration है, we have studied with the passage of time the concentration of reactants will decrease, and if we are capable of measuring the concentration of reactants then we will plot the concentration of reactants with time. सबसे पहले क्या किया हमने, reactants की concentration measure कर ली, particular time पे कितनी concentration है reactants की वो measure कर ली. फिर reactants की concentration measure करने के बाद what we will do, जो भी हमारे पास प्लॉट ग्राफ हमारे पास आ रहा है, जो भी ग्राफ प्लॉट हुआ, जो भी reactants की concentration हमने measure की, उसके बाद ग्राफ प्लॉट करेंगे concentration versus टाइम. किसके साथ प्लॉट करना है ग्राफ? concentration versus टाइम. देन जो भी हमारे पास ग्राफ ऑब्टेन हो रहा है उस ग्राफ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे? वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. कहां से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? जो हमने पहले ग्राफ प्लॉट किया, कौन सा ग्राफ प्लॉट किया? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम. उस ग्राफ से हमने कौन सी वैल्यू फाइंड आउट कर ली? रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर ली. डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास आ सकती हैं. उसके बाद हम क्या करेंगे? Values of instantaneous rates are obtained, various values are obtained, then we will plot the graph between the various values of a rate of reaction obtained versus concentration of reactant A. Various values of rate of reaction obtained versus concentration of reactant A or concentration of reactant A square. In case of first order reaction, what will happen? Here we have plotted. See, we have studied in case of zero order reaction, the rate of reaction will be independent of concentration of A. We have already studied in case of zero order reaction, rate is directly proportional to what? A naught, and here rate is equal to what? Rate constant K into A raised to power what? 0. Rate of reaction is independent of concentration of A. So, the variation will be like this, means rate of reaction will not change with increase in concentration of a reactant. जो भी हमारे पास reactant A है इसकी concentration में change हो रहा है, उसके साथ हमारे पास rate of reaction की value जो है वो rate की जो value है वो affected नहीं होगी. यही हमने study किया था. Rate of reaction is independent of concentration of reactants in case of zero order reaction. वही हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में स्टडी किया था. रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इंटू ए रेज टू पावर 1. ठीक है. और सेकेंड ऑर्डर के केस में क्या आ जाएगा? अगर सेकेंड ऑर्डर है देन रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के ए रेज टू पावर 2. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. इस तरीके से हम जो है रिएक्शन का ऑर्डर जो फाइंड आउट कर सकते हैं. सबसे पहले हमने किसी भी तरीके से क्या फाइंड आउट किया? कॉन्सेंट्रेशन मेजर की. किसकी कॉन्सेंट्रेशन मेजर की? रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम की. पर्टिकुलर टाइम पे रिएक्टेंट्स की क्या कॉन्सेंट्रेशन है. फर्स्ट टास्क हो गया. पहले हमने डिटरमाइन कर ली कॉन्सेंट्रेशन, फिर ग्राफ प्लॉट किया कॉन्सेंट्रेशन वर्सेज टाइम. ठीक है. उस ग्राफ से हमने स्लोप उस ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट करके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यूज ऑब्टेन कर सकते हैं. डिफरेंट वैल्यूज जो हमारे पास आ रही हैं. सपोज हमने 3 to 4 वैल्यूज जो फाइंड आउट कर ली. वैल्यूज ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस कैन बी ऑब्टेन्ड. वेरियस वैल्यूज कैन बी ऑब्टेन्ड. अब उन वैल्यूज को हम यूज करेंगे और उन वैल्यूज को हमने किसके अगेंस्ट प्लॉट करना है? देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में ए रेज़ टू पावर 0. ठीक है. यहाँ पे कोई भी रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन हम इंक्रीज भी कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. इसके केस में अगर कांस्टेंट रह रहा है तो
रिएक्शन विल फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। देन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में जैसे जैसे हम ए की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, रेट की वैल्यू भी उस तरीके से क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। जबकि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के केस में क्या होगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a raised to power 2 एंड रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट k इनटू a raised to power 2। सो a का स्क्वायर यहाँ पे प्लॉट करेंगे वर्सेस इस साइड क्या आ जाएगा हमारे पास, ये रेट की वैल्यू प्लॉट करेंगे तो इस तरह से वेरिएशन आएगी। अगर इस तरह से ग्राफिकल वेरिएशंस हमारे पास आ रही हैं, देन ऑन द बेसिस ऑफ दीज वेरिएशंस वी कैन फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। एक्सपेरिमेंटली जो भी वैल्यूज आएंगी उन्हीं वैल्यूज को हम प्लॉट करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू पर्टिकुलर टाइम पे क्या आ रही है, वहां से हमने इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड आउट किया, उस रेट को प्लॉट किया विद चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। वहां से हम जो भी हमारे पास ग्राफ आ रहा है उससे फाइंड आउट कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट मेथड इज यूज ऑफ इंटीग्रेटर रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटर रेट इक्वेशन को यूज करके भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमारे पास टाइम दे रखा है मिनट्स में और मोल्स ऑफ KMnO4 दे रखे हैं 22.8 हैं। जब जीरो है टाइम t इज इक्वल टू 0 देन 22.8 मोल्स हैं KMnO4 के। जब 10 मिनट्स हैं तो 13.8 हैं। जब 20 मिनट्स हो गए तो 8.3 मोल्स हैं किसके, KMnO4 के। अब ये जो भी हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डाटा दे रखा है यहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब जैसे क्वेश्चन में पूछ रखा है कि शो दैट द रिएक्शन विल फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। सो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के केस में हमारे पास इक्वेशन है, इंटीग्रेटर रेट इक्वेशन है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन a नॉट ओवर a। ये आपने इंटीग्रेटर रेट इक्वेशन ऑलरेडी पढ़ रखी है। देखो ये जो है ट्रायल एंड एरर वाला मेथड है, बट यहाँ पे जैसे हमारे पास क्वेश्चन है तो क्वेश्चन स्पेसिफिक है, ये डाटा दे रखा है और क्वेश्चन है हमारे पास शो दैट द रिएक्शन विल फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। Show that the reaction will follow first order kinetics। ठीक है। सो इंटीग्रेटर रेट इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर के केस में है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग e नॉट ओवर a। ये इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे और फाइंड आउट करेंगे वैल्यू रेट कांस्टेंट की 1 by 1। तो यहाँ पे मैं k1 लिख लेता हूँ। k1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है 2.303 अपॉन टाइम है मेरे पास 10 मिनट्स लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 22.8 डिवाइडेड बाय, अब एट टाइम t इज इक्वल टू 10 मिनट्स कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 13.8। ठीक है, तो इसको आगे आप सॉल्व कर लोगे। k1 की वैल्यू क्या बन जाएगी, k1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 लॉग 22.8 माइनस लॉग 13.8। ठीक है, अब इसको जो है वो सॉल्व किया जा सकता है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, जो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आ रही है दैट इज 0.05022 पर मिनट। ठीक है, यहाँ पे अब लॉग 22.8 की वैल्यू पुट करोगे, 22 के सामने 8 के नीचे वैल्यू जो भी वैल्यू आ रही है, 13 के सामने 8 के नीचे जो भी वैल्यू आ रही है, माइनस करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2.303 से, डिवाइड करोगे 10 से, तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू जो है वो ये आ रही है 0.05022। ठीक है, तो एक वैल्यू तो आ गई रेट कांस्टेंट k की वैल्यू, k1 की वैल्यू तो आ गई हमारे पास। इसी तरह से हम सेकेंड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे k2 की वैल्यू। k2 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन, अब टाइम 10 की जगह पे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो वही रहेगी 22.8 अपॉन 13.8 की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा 8.3। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है k2 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 20 लॉग 22.8 माइनस लॉग 8.3। ठीक है, इसको
भी सॉल्व कर लेंगे। और इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आ रही है रेट कांस्टेंट की, जो वैल्यू आ रही है K2 की जो वैल्यू आ रही है, दैट इज द वैल्यू इज 0.05053 पर मिनट। तो यहाँ पे आप अगर दोनों वैल्यूज को कंपेयर करो, ये K1 की वैल्यू थी और ये K2 की वैल्यू आ रही है, तो दोनों वैल्यूज जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, 0.05 hence the reaction will follow first order kinetics। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के केस में रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। सो व्हाट यू हैव टू डू, हर स्टेप पे आपको जो भी रेट कांस्टेंट K की वैल्यू आ रही है वो वैल्यूज जो वो कंपेयर कर रहे हैं, अगर करनी है, अगर ये वैल्यूज जो वो सेम आ रही हैं, देन द रिएक्शन विल फॉलो first order kinetics। So in this way you can solve such kind of numericals and we can determine the order of reaction। अगर ये वैल्यू सेम आ रही है, K1 K2 की वैल्यू जैसे हमारे पास इसका केस में सेम आ रही है, इट मीन्स द रिएक्शन विल फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, मैंने आपको पहले ही क्लैरिफाई कर दिया, द मेथड इज व्हाट, हिट एंड ट्रायल मेथड और ट्रायल एंड एरर मेथड। इसमें अगर ये पूछा होता है कि फाइंड आउट दैट वेदर द रिएक्शन विल फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स और नॉट, तो हम जीरो ऑर्डर के केस में वो इक्वेशन अप्लाई करते। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या था, शो दैट द रिएक्शन विल फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के केस में जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यूज होती है वो इक्वेशन जो है वो यूज की, और उसके बेसिस पे हमने किसकी वैल्यूज फाइंड आउट की, K1 की वैल्यू फाइंड आउट की, K2 की वैल्यू फाइंड आउट की। द वैल्यूज आर कमिंग ऑलमोस्ट सेम, जो वैल्यूज हैं वो ऑलमोस्ट क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। हेंस वी कैन से दैट द रिएक्शन विल फॉलो which type of kinetics, the reaction will follow first order kinetics। So students, next जो मेथड है हमारे पास, that is initial rate method। और initial rate method में हम initial rate method जो है अप्लाई करके कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है 2NO, नाइट्रिक ऑक्साइड है, Br2 के साथ रिएक्ट करके 2NO Br फॉर्म कर रहा है, एक्सपेरिमेंट 1 2 3। और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड की दे रखे है 0.10 0.20 सेकेंड एक्सपेरिमेंट में, थर्ड एक्सपेरिमेंट में भी 0.20 है। और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर Br2 की बात करें, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में 0.10 है, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में 0.10 है, थर्ड में 0.30 है। और यहाँ पे रेट की वैल्यू भी गिवन है 1.3 into 10⁻⁻6 मोल पर लीटर पर मिनट, 5.2 into 10⁻⁻6 मोल पर लीटर पर मिनट, एंड हियर 1.56 into 10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर मिनट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसके बाद हम डिफरेंट इक्वेशंस जो है वो रेट के लिए जो है वो फ्रेम करेंगे और उन इक्वेशंस को जो है वो कंपेयर करेंगे। सो उन इक्वेशंस को कंपेयर करने के बाद जो हमारे पास आ रहा है वो इक्वेशंस है। So students, rate 1 is equal to rate constant K and O की concentration 0.10 है raised to power P, and Br2 की concentration भी यहाँ पे 0.10 है raised to power Q is equal to 1.3 into 10⁻⁻6। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास क्या आ रहा है, rate 2 is equal to K, rate constant K into 0.20 raised to power P and 0.10 raised to power Q is equal to 5.2 into 10⁻⁻6। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, K से वैसे भी K कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बन रहा है। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास सेकेंड इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये बन रहा है 2 raised to power P is equal to 4, और इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 raised to power P is equal to 4, or it can be written like this, 2 raised to power P is equal to 2 raised to power 2। Hence the value of P is equal to what, 2। P की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 आ गई, P is equal to 2। So इसी तरह से एक और इक्वेशन हमारे पास फ्रेम हो जाएगी। फिर हम जो थर्ड इक्वेशन बन रहे हैं उस थर्ड इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड करेंगे और हमारे पास जो है वो Q की वैल्यू भी आ जाएगी। सो आगे हम कैलकुलेट कर रहे हैं Q की वैल्यू। नेक्स्ट जो है थर्ड इक्वेशन से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, Q की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे।
सो स्टूडेंट्स जो थर्ड हमारे पास इक्वेशन बन रही है, रेट 3 इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इनटू वैल्यूज देखो 0.20 रेज टू पावर p इनटू 0. कितना है यहाँ पे 30 रेज टू पावर q इज इक्वल टू 1.56 इनटू 10 रेज टू पावर -5। अब जो थर्ड इक्वेशन है उसको डिवाइड कर दो किसे, सेकेंड इक्वेशन से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 0.20 डिवाइड बाय 0.20 रेज टू पावर p इनटू 0.30 डिवाइडेड बाय 0.10 रेज टू पावर q इज इक्वल टू 1.56 इंटू 10 रेज टू पावर -5 डिवाइडेड बाय 5.2 इंटू 10 रेज टू पावर -6। माइनस का 6 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस का 6 हो जाएगा। सो ये बन जाता है हमारे पास, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 15.6 डिवाइड करेंगे इसको तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 3। ठीक है, ये कट गया 10 3 सा। सो यहाँ पे इसको 3 रेज टू पावर q इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 1, हेंस द वैल्यू ऑफ q इज इक्वल टू 1। q की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 1 आ रही है। सो यहां से हमने डिटरमाइन कर लिया, p की वैल्यू भी डिटरमाइन कर ली और q की वैल्यू भी डिटरमाइन कर ली। अब p की वैल्यू कितनी है हमारे पास, p की वैल्यू आई 2 और q की वैल्यू क्या आई 1। तो यहाँ पे अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दें, p की जगह पे अगर रखें 2 और यहाँ पे q की जगह पे रखें 1, then rate of reaction with respect to NO will be 2 and rate of reaction with respect to Br2 will be equal to 1 and overall reaction will be but 2 plus 1 and order of reaction will be sum of powers 2 plus is equal to 3. So order of reaction will be 3. So in this way we can solve such kind of a numericals। अगर इस तरह के numericals हैं तो हम इनको इस तरीके से solve कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन कितना आ रहा है हमारे पास, 3 आ रहा है। एक बार फिर से देख लेते हैं, हमारे पास जो भी क्वेश्चन था एक्सपेरिमेंटल डाटा आपके पास गिवन होगा। इसमें हम जो भी वैल्यूज हैं, जो भी एक्चुअल वैल्यूज हैं वही वैल्यूज हमने यूज करनी है। इनिशियल रेट मेथड में हमारे पास जो भी इक्वेशन थी वो लिखा, रेट लॉ इक्वेशन लिखी, उसके बाद p और q की टर्म में लिखी हमने ये। पहले रेट 1 की वैल्यू फाइंड आउट की, रेट कांस्टेंट k इंटू 0.10 रेज टू पावर p 0.10 रेज टू पावर q इज इक्वल टू 1.3 इंटू 10 रेज टू पावर -6। अपनी तरफ से कुछ नहीं यूज किया है, जो भी वैल्यूज हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो भी डाटा था उसमें दे रखी थी वहीं से हमने सारी की सारी वैल्यूज जो ले रखी हैं। एंड पहले हमने सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड किया, फिर जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड किया और हमारे पास जो p और q की वैल्यूज आ रही हैं, p की वैल्यू आई मेरे पास 2, q की वैल्यू आई 1, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया 2 + 1 3, बिकॉज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हमने पहले भी कॉन्सेप्ट स्टडी किया है, इट इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ पावर्स। किसके इक्वल है ये, सम ऑफ पावर्स। तो सम ऑफ पावर्स p + q कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 आ रहा है। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन केस ऑफ दिस रिएक्शन विल बी इक्वल टू व्हाट, 3। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर बात की जा रही है तो कितना आएगा, 3 आएगा। स्टूडेंट्स इसके अलावा और जो मेथड यूज किए जा सकते हैं, ओस्टवाल्ड्स आइसोलेशन मेथड जो है वो यूज किया जा सकता है, या फिर हाफ लाइफ पीरियड वाला मेथड जो वो भी यूज किया जा सकता है टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बट ये जो भी 3 मेथड्स हमने डिस्कस किए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस तरह के न्यूमेरिकल्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरली पूछे जाते हैं। एक्सपेरिमेंटल डाटा गिवन होता है तो उसके बेसिस पे वी हैव टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट, और जो भी रिएक्टेंट्स हमारे पास दे रखे होते हैं, या फिर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो भी फाइंड आउट किया जा सकता है। whatever we depend upon the question to question, it may vary from question to question, but the exact way of solving such kind of numericals is this which we have solved.